الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمدللہ پچھلی کلاسز میں ادغام کا ہم لوگ تفصیل سے پھر دوبارہ یعنی ریویژن کر لیے. امید ہے کہ اب آپ لوگوں کو جب بھی قرآن پڑھ رہے ہیں تو ادغام کے جو بھی رولز بتائے گئے تھے وہ سمجھ میں آ رہے ہیں انشاءاللہ. تو آگے آج آپ اور میں الحمدللہ التقاء ساکنین کے ٹاپک پر یعنی کچھ خلاصے کریں گے اور سیکھیں گے. اس کا بھی تھوڑا ڈیٹیل میں آئے گا لیکن الحمدللہ آج آسان طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ آپ اور میں اس کوشش کریں گے انشاءاللہ. جی یہاں پر جو یعنی آپ کو نوٹس دکھائی دے رہے ہیں، پتہ نہیں بعض دفعہ مجھے تھوڑی اپنی ہینڈ رائٹنگ بہت چھوٹی سی نظر آتی ہے مجھے خود بھی لکھتے لکھتے، تو آپ اس پر زیادہ توجہ نہ کریں. انشاءاللہ میں آپ کو جب نوٹس بنا کر گروپ میں سینڈ کروں گی تو آپ کو اس کو اور تھوڑا قرآن کے ایگزامپلس کے ذریعے سے ڈیٹیل سے یعنی سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. اور کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے یعنی التقاء ساکنین کا ایکسپلینیشن دینے سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ لوگ اپنے مصحف کو یعنی بازو رکھ لیں تاکہ ہم لوگ یعنی سیکھتے سیکھتے ایسے ہی میں آپ کو قرآن کے ذریعے سے ایگزامپلس یعنی دکھاؤں گی جس سے آپ لوگوں کو یعنی سمجھ میں آئے گا کہ التقاء ساکنین کس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو بھی ہیں اب کلاس میں الحمدللہ آپ لوگ اپنے مصحف کو یعنی قرآن کو اپنے بازو میں رکھیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے التقاء ساکنین. التقاء ساکنین کس کو کہتے ہیں کہ بعض دفعہ قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ دو ایسے کلمے یا دو ایسے لفظ یا دو ایسے ورڈز اوکے جمع ہوں گے جن پر یعنی بعض وقت ایسے ہوتا ہے کہ ساکن دونوں ساتھ مل کر آئیں گے. ٹھیک ہے، یعنی ایسے الفاظ جن میں دو ساکن بازو بازو آئیں گے یا بغل میں آئیں گے ایک دوسرے کے، جو کہ پڑھنے کے لیے بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے، پڑھنے کے لیے آپ کو اور میرے لیے بہت مشکل ہے، جس کی وجہ سے عرب کیا کیے یعنی یہ مشکلات میں آسانی لانے کے لیے الحمدللہ قرآن میں بعض ایسے رولز لائے گئے جس کی وجہ سے یہ آپ کو اور مجھے پڑھنے میں آسانی کر دی گئی الحمدللہ. ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز آپ یاد رکھیں، جو بھی یہ رولز آپ اور میں سیکھیں گے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو جیسے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور قرآن کا نزول کیا تو اسی حساب سے یعنی قرآن
आज आप और मैं जो भी उस्मान रदी अल्लाह अन्हु के दौर में जमा किया गया मुसहफ की शक्ल में वही है। ये नहीं कि यानी अरब अपने हिसाब से, अपनी सहूलत के हिसाब से जो चाहे कुरान में, चाहे वो इल्तिकाए साकिनैन हो या दूसरे कोई भी रूल हैं तजवीद के, वो जमा कर लिए अपनी सहूलत के हिसाब से, ऐसा नहीं है। बल्कि ये अल्लाह तआला की तरफ से यानी बंदों को अता करदा यानी दिया हुआ एक तोहफा है कि बंदों को यानी पढ़ने में आसानी हो सके। ठीक है? तो ये जो भी किया गया ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से किया गया और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसी तरह इसको पढ़ा और इसका यानी जुगाड़ किया, इसको एक जगह जमा किया गया और इसे मुसहफ की शक्ल में लाया गया और इसमें रूल्स भी वही अप्लाई किए गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया था सहाबा को। ओके? तो ये बात आपको और मुझे बहुत क्लियर होनी चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें इल्तिकाए साकिनैन जैसा मैं आपको बताई कि कुरान में बाज़ दफ़ा ऐसे लफ्ज़ या कलीमे आ जाते हैं जहाँ पे 2 साकिन एक जगह पे मीट होते हैं। ओके? 2 साकिन एक जगह पर जमा होते हैं जो कि पढ़ने के लिए हमें मुश्किल है। तो ऐसे यानी बाज़ जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप और मैं आज डिस्कस करके समझेंगे। तो सबसे पहले जो है इल्तिकाए साकिनैन के 2 यानी रूल्स आते हैं, ठीक है? यानी 2 टू वेज़ हैं। अब साकिन 2 साकिन अगर एक जगह पर जमा हों तो 2 साकिन को मिलाकर पढ़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए क्या किया जाता है कि एक साकिन को निकाल दिया जाता है और दूसरे साकिन को यानी मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर पढ़ा जाएगा। तो ये कैसे पढ़ेंगे और कैसे साकिन को एक लफ्ज़ में निकाला जाएगा ताकि दूसरे लफ्ज़ को पढ़ने में आसानी हो, तो ये हम इंशाअल्लाह सीखेंगे और इसके आप और मैं यानी 2 तरीक़े हैं, ओके? जो आप आज मैं इंशाअल्लाह क्लास में आपको समझाऊँगी। इल्तिकाए साकिनैन के 2 तरीक़े हैं, ठीक है? एक जो है पहला वो है अल-हज़फ़। एक पहला जो है वो है अल-हज़फ़ और दूसरा जो है अत-तहरीक, ठीक है? अल-हज़फ़ का माना ये है कि आप साकिन को निकाल देंगे, यानी रिमूविंग ऑफ द साकिन फ्रॉम द वर्ड। यानी जो भी लफ्ज़ होगा जिसके आखिर में साकिन आएगा, दूसरे लफ्ज़ को पढ़ने में आसानी करने के लिए ये पहले वाले साकिन को निकाल दिया जाएगा। अब वो कैसे निकाला जाए एग्जाम्पल्स के ज़रिए से समझेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है? तो सबसे पहले जो मैं आपको बताई कि अल-हज़फ़, अल-हज़फ़ का माना है निकाल देना, टू रिमूव या रिमूविंग। दूसरा जो है अत-तहरीक, अत-तहरीक का माना यानी कोई हरकत को ऐड कर देना, कोई हरकत को लगा देना या जमा कर देना। ये मैं आगे जैसे-जैसे आपको समझाऊँगी इंशाअल्लाह आप लोग इसको समझेंगे। तो सबसे पहले अल-हज़फ़ को लेंगे हम, अल-हज़फ़ को लेंगे। अब अल-हज़फ़ में सॉरी कॉल तो अल-हज़फ़ यानी अल-हज़फ़ के आपको 2 तरीक़े कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह अल्फ़ाज़ में नज़र आएँगे। तो सबसे पहला तरीक़ा ये है कि जब 2 साकिन यानी एक ही कलीमे में जब 2 साकिन जमा होंगे तो इसकी इजाज़त है। अब जैसा कि मैं आपको बताई कि 2 कलीमे यानी अगर 2 कलीमे आ रहे हैं और उसमें साकिन अगर एक ही जगह पे यानी पहले कलीमे के आखिरी हर्फ पर और दूसरे कलीमे के स्टार्ट पर अगर साकिन आ रहा है तो वक़्फ़ के रूल के हिसाब से अगर एक ही कलिमा यानी एक ही वर्ड हो और एक ही वर्ड हैं
एक ही वर्ड में अगर दो साकिन जमा हो रहे हैं वक्फ की सूरत में, ये अक्सर क्या होता है, वक्फ की सूरत में जमा होंगे दो साकिन, या फिर सांस टूटने की वजह से बाज दफा जहां पर हम स्टॉप करेंगे वहां पर दो साकिन जमा होंगे एक ही वर्ड में, ठीक है, एक ही कलीमे में या एक ही लफ्ज में। तो ये चीज की यानी इजाजत है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब इसको आप और मैं एग्जाम्पल के जरिए से कैसे समझेंगे, आप यानी मैं यहाँ पर एग्जाम्पल आपको लिखकर हूं, लेकिन बेहतर है आप अपने मुसहफ को खोलें, मुसहफ को खोलें आप लोग, और मैं बताऊं आपको कि सबसे पहले जो हज़फ की मिसाल मैं आपको दूंगी कि एक ही वर्ड में दो साकिन का जमा होना जायज है, ये आपको सूरे बकरा की आयत नंबर 29 29 में मिलेगी। सूरे बकरा की आयत नंबर 29 या 29 में मिलेगी। अगर आप लोगों ने उठा लिया है तो अल्हम्दुलिल्लाह, देखें सूरे बकरा की आयत नंबर 29 में अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको एक वर्ड आ रहा है। दो मिसालें दूंगी मैं यहाँ पर। आयत के एंड में वहुव बिकुल्लि शैइन अलीम, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, साकिन या साकिना है, ठीक है, या साकिना के बाद हम लोग रुकाने की सूरत में मीम को भी साकिन दे रहे हैं, जबकि मीम पर आप देखेंगे तो वो तनवीन यानी लिखा हुआ है आखिर में, ठीक है। लेकिन रुकाने की सूरत में, स्टॉप करने की सूरत में आप और मैं क्या कर रहे हैं, मीम को साकिन देकर स्टॉप कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, पहले या पर ऑलरेडी साकिन था, अब आपने मीम पर वक्फ करने की सूरत में यानी स्टॉप करने की सूरत में एक और साकिन लगा दिया। तो ये क्या हुआ, एक ही वर्ड में आपने दो साकिनों को जमा कर दिया, ठीक है। तो ये रूल एप्लीकेबल है, ये रूल जायज है इस तरह का करना, और ये आराम से हम पढ़ भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब इसी आयत में अगर आप देखें तो इलस्समाइ फसव्वाहुन्न सबअ, यहाँ पे अगर आप देखें मैंने आइन पर स्टॉप किया, ठीक है, आइन पर स्टॉप किया, जबकि यहाँ पर आइन पर हम फतहा है यानी जबर है। लेकिन मैं क्यों यहाँ पर आइन पर स्टॉप की, जरूरी नहीं है यहाँ पर स्टॉप करना, ठीक है। सबआ माने सात, समावात माने आसमान, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ एग्जाम्पल आपको बताने के लिए स्टॉप की कि बाज दफा, अब जैसा कि आप देखें कि आयत लंबी है, किसी किसी को आयत के दरमियान में सांस टूटने की यानी चांस रहती है। तो अगर हम लोग पढ़ रहे थे और सब पे अगर सांस टूट गई तो वहां पे हम क्या करेंगे, जबर की जगह हम साकिन लगाकर इसको स्टॉप करेंगे, कैसे, सब, सब, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, आपको आपने वक्फ की सूरत में एक साकिन लगा दिया, तो यहाँ पे एक ही वर्ड में दो साकिन जमा हो गए, जो कि जायज है ऐसा करना, और हम इसे आसानी से पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो हज़फ का एक रूल क्या हुआ, ये रूल यहाँ पर एक साकिन ऑलरेडी था, वक्फ की सूरत में या सांस टूटने की वजह से आपने यहाँ पर मुतहर्रिक लेटर को साकिन दे दिया, यहाँ पर यानी रुक गए, ओके। तो इस तरह का एक ही वर्ड में दो साकिन का जमा होना या इल्तिकाए साकिनैन होना ये जायज है, ठीक है। लेकिन ये जो साकिन आप देंगे वक्त की सूरत में, ये टेम्पररी साकिन है, असली साकिन नहीं है, ठीक है, असली साकिन नहीं है, बल्कि ये टेम्पररी है जो आप दे रहे हैं। अब इसी तरह अगर आप देखें आयत नंबर 36 में, यानी बहुत जगह पे आ रहा है, थोड़ा बदल बदल के मैं आपको दिखा रही हूँ। आयत नंबर 36 सूरे बकरा की अगर आप देखें तो यहाँ पर भी इलाहीन, ठीक है,
यहाँ पर भी आप और मैं क्या किए, या साकिना ऑलरेडी है, आपने नून को स्टॉप करने की सूरत में साकिन देकर स्टॉप किया। तो ये आपने क्या किया, इसको टेम्पररी साकिन दे दिया, जिसकी वजह से एक ही लफ्ज में या एक ही वर्ड में दो साकिन जमा हो गए, जो इल्तिकाए साकिनैन है, यानी टू साकिन्स का मीट होना। इल्तिखा इल्तिखा किससे निकलेगा आपको, मुलाकात, उर्दू का जो वर्ड है मुलाकात, ठीक है। मुलाकात, दो साकिनों का मुलाकात होना, दो साकिनों का जमा होना, दो साकिनों का एक जगह पे मिलना, तो ये जायज है, ठीक है। और इसको पढ़ने में आसानी भी रहेगी, कोई मुश्किल नहीं होगी। हज़फ का ये एक 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 पहलू था या एक रूल था, ठीक है। दूसरा जो अब आप और मैं देखेंगे, अल हज़फ में मुसहफ को खुला ही रखें, मैं एग्जाम्पल्स के जरिए से इंशाल्लाह आपको समझाऊंगी कि आप देखेंगे कि जब पहला वर्ड यानी हुर्फे मद्दा से खत्म होगा, जब दो कलीमों में या दो वर्ड्स होंगे, ठीक है, दो वर्ड्स होंगे, पहला वर्ड हुरूफे मद्दा से खत्म होगा और उसके बाद वाला वर्ड यानी जो रहेगा, हम इसको क्या करेंगे, जो हुरूफे मद्दा का, यानी हुरूफे मद्दा किस पर होता है, अलिफ, वाउ और या पर होता है, ठीक है। तो अलिफ से पहले जबर, वाउ साकिन से पहले पेश, या साकिन से तो हुरूफे मद्दा होता है, ठीक है। तो जब भी आप कुरान में ऐसे हुरूफ देखेंगे, ऐसे वर्ड्स देखेंगे जो हुरूफे मद्दा से एंड हो रहे हैं और फिर उसके बाद वाला वर्ड आपको साकिन से शुरू हो रहा है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, यानी जो हुरूफे मद्दा के हुरूफे मद्दा का साकिन है, वो साकिन को आप हज़फ कर देंगे, रिमूव कर देंगे, निकाल देंगे, और उससे पहले के मुतहर्रिक लेटर को सेकेंड वर्ड के यानी स्टार्ट में आप उसको जमा करके मिला करके पढ़ लेंगे। अब इसको मैं आपको एग्जाम्पल इंशाल्लाह बताऊंगी। आप देखें, सूरे बकरा की आयत नंबर 25 उठा लें, सूरे बकरा की आयत नंबर 25। आप अगर मुसहफ आपके पास है, बहुत यानी मुफीद रहेगा, जब भी आप क्लास में बैठें तो इंशाल्लाह मुसहफ साथ लेकर बैठें, ताकि मैं आपको कुरान के जरिए से ही एग्जाम्पल्स दिखा लूं, कंफ्यूजन ना रहे इस आप लोगों को इंशाल्लाह, ठीक है। तो सूरे बकरा की अगर आयत नंबर 25 में आप और मैं देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, तो वहां पर एक वर्ड आ रहा है, वअमिलुस्सॉलिहाती, वअमिलुस्सॉलिहाती, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें वअमिलू, वअमिलू, यहाँ पर ववे मद्दा आ रहा है, ठीक है। लू पे वऊ साकिन से पहले पेश है, लेकिन चूंकि अगर आप देखें यहाँ पर सौत पर शद्दा है। अब शद्दा आपको क्या हुआ, शद्दा में दो लेटर्स रहते हैं, एक सौत साकिन प्लस सौत जबर, ठीक है। यहां पर क्या रहेगा, सौत साकिन रहेगा प्लस सौत जबर रहेगा। तो पहला वाला क्या हुआ, साकिन आया। अब वव्वे मद्दा है, वव्वे मद्दा पर भी साकिन है, सौत पहले वाले यानी शद्दा के साकिन में भी अगर स्प्लिट करें तो सौत पर भी साकिन है। तो दो साकिन यहाँ पर जमा हो गए, जिसकी वजह से हमें पढ़ने में मुश्किल होगी। तो क्या किए, जो हुरूफे मद्दा यानी वऊ का जो साकिन है उसको हज़फ कर दिया गया, वऊ को पढ़ा नहीं जाएगा बल्कि डायरेक्टली लू को सौत से मिला दिया जाएगा। आएंगे वऊ को नहीं पढ़ेंगे, यानी वऊ मद्दा को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि डायरेक्टली लाम दमालू को सौत से मिलाकर डायरेक्टली पढ़ दिया जाएगा। वऊ साकिन को यानी हुर्फे मद्दा के वऊ को हज़फ कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, यानी एक साकिन को रिमूव कर दिया गया हुर्फे मद्दा का, और दूसरे लेटर के साकिन से मिलाकर मुतहर्रिक लाम को पढ़ा गया, ठीक है।
तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसी आयत में ऐसे ही कंटिन्यू करें। अगर आप देखें, मिन तहतिहल अनहार, यहां पर अगर आप देखें तहतिहल, तहतिहल, ओके। यहां पे आप अगर देखें तहतिहा, अगर अलग से पढ़ेंगे आप तो अलीफे मद्दा आ रहा है, ठीक है, अलीफे मद्दा आ रहा है। अब अलीफे लाम साकिना के साथ पढ़ना मुश्किल है, ठीक है। अब हम लाम अलीफे मद्दा को अगर लाम साकिना से मिलाकर पढ़ना हो तो आप ट्राई करके देखें, मुश्किल होगी। तो हम क्या करेंगे, इस अलीफे मद्दा को ड्रॉप कर देंगे और हा पर जो हरकत है यानी फतहा है या जबर है, इसको लाम साकिना से डायरेक्ट मिलाकर पढ़ेंगे। मिन तहतिहल अनहार, ठीक है। तो एक साकिन वाला हर्फ यानी हजफ कर दिया गया जो कि हुर्फे मद्दा था, दूसरे साकिन वाले लेटर को मिलाकर पढ़ा गया। तो ये इल्तिकाए साकिनैन जब हुआ तो यहाँ पर वो मद्दिया लेटर को हजफ कर दिया गया, ठीक है। तो ये आपको हजफ का दूसरा यानी रूल जो है ये मैं आपको समझाई, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। हाँ, सूरह बकरा का, ठीक है। चलें, और अगर आप और इसको यानी जानना चाहें तो देखें आप सूरह बकरा की ही आयत नंबर 36 उठा लें। सूरह बकरा की ही आयत नंबर 36 को उठाएं। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आपको पता चलेगा कि आयत के स्टार्ट में ही फ़अज़ल्लहुमश्शैतानु, फ़अज़ल्लहुमश्शैतानु, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हुआ, आपको फ़अज़ल्लहुमा अलग से पढ़ा गया, तो माँ में अलिफे मद्दा आ रहा है, लेकिन चूंकि शीन पर शद्दा है और शद्दा आपको क्या है, शीन साकिन प्लस शीन मुतहर्रिक, तो दोनों साकिन एक जगह पे जमा हो गए, इसलिए क्या किया गया, अलिफे मद्दा को ड्रॉप कर दिया गया और माँ को डायरेक्टली शीन या शीन से मिला दिया गया। समझ में आया? ये दूसरा वाला हज़फ का रूल है। पहले हम क्या पढ़े, अगर एक ही वर्ड में दो साकिन जमा हो तो वो जायज है, उसको पढ़ने में भी कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन वो कब होगा एक ही वर्ड में दो साकिन का जमा होना, जब हम आयत के में या फिर दरमियान में अगर सांस टूटेगी तो वहां पर। लेकिन यहाँ पर हज़फ का हम इल्तिकाए साकिनैन में हज़फ का दूसरा रूल कौन सा सीखें कि जब हुरूफे मद्दा के बाद अगर साकिन का लेटर आए तो दो साकिन अगर जमा हो रहे हैं जिसको हम इल्तिकाए साकिनैन कहते हैं, तो वहां पे हुरूफे मद्दा के साकिन को ड्रॉप कर दिया जाएगा। इसी तरह से मैं आपको बताई, अलिफे मद्दा का हो गया, वहुए मद्दा का हो गया। अब याए मद्दा की मिसाल आप देखेंगे सूरह बकरा की आयत नंबर 29 में। सूरह बकरा की आयत नंबर 29 में अगर आप देखें, वहां पर आपको मिलेगा हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, फिल अर्दि, फिल अर्दि। यहाँ पे अगर आप देखें, फी अगर स्टॉप करें तो यहाँ पर याए मद्दा आ रहा है, ठीक है। उसके फौरन बाद अगर आप देखें हमजतुल वसल है जो कि पढ़ा नहीं जाएगा क्योंकि इससे पहले मुतहर्रिक लेटर है। तो लाम पर आपको क्या मिला, साकिन मिला। तो या साकिन और लाम साकिन दोनों साकिन एक जगह पे जमा हो गए, जिसकी वजह से इसको पढ़ना मुश्किल है। तो या साकिन को ड्रॉप हुर्फे मद्दा के गया, हुर्फे मद्दा के या साकिन को ड्रॉप कर दिया गया और फी यानी जो कसरा है, फ के नीचे जो कसरा या जेर है, इसको डायरेक्टली लाम से मिलाकर पढ़ा गया, फिल अर्दुई, फिल अर्दुई,
ठीक है, उम्मीद है हज़फ के ये दोनों रूल आपको अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गए होंगे। ओके, तो चलें नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स आपको कुरान में मिलेंगे इंशाल्लाह। होमवर्क के जरिए से अगर आप यानी इसको ढूंढेंगे और मुझे सेंड करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम क्या सीखे, इल्तिकाए साकिनैन का फर्स्ट जो तरीका था अल हज़फ, अल हज़फ में भी आप और मैं यानी दो रूल सीखे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं, चले अत-तहरीक की तरफ। क्या है अत-तहरीक? ठीक है, अत-तहरीक जैसा कि मैं बताई आपको यानी ववल को ऐड करना। ववल किसको कहेंगे आप? अरबिक में किसी हरकत को ऐड करना। ठीक है, किसी हरकत को ऐड करना। अब ये कैसे समझेंगे, ये भी अगर आप देखें कुरान में ऐसे यानी अल्फाज आएंगे जिस पर आपको यानी वही दो यानी वर्ड्स एक साथ नजर आएंगे जिसमें आपको यानी पढ़ने के लिए एक पहला वाला साकिन रहेगा फिर दूसरा वाला भी साकिन रहेगा। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, पहले साकिन को आप एक बात याद रखें, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं हज़फ में क्या बताई, वव्वे मद्दा सॉरी मद्दिया लेटर्स आए तो ही आपको यानी हज़फ करना है। ठीक है, मद्दिया लेटर के साकिन को हज़फ करना है। मद्दिया लेटर के अलावा अगर कुरान में ऐसे यानी अल्फाज आए जिन पर साकिन हो, जिनके एंड में साकिन हो और दूसरा यानी नेक्स्ट कनेक्टिंग वर्ड जो है उस पर भी अगर साकिन आए तो ये भी मिलाकर पढ़ना मुश्किल है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ये देखेंगे, ये अत-तहरीक में आएगा आपको। ठीक है, अत-तहरीक में आएगा। तो ये इसका एग्जाम्पल के जरिए से मैं आपको इंशाल्लाह समझाऊंगी तो आप बहुत अच्छे से इसको समझेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है। इसी तरह सॉरी, सूरह बकरा की आयत नंबर 16 को ओपन कर लें प्लीज। सूरह बकरा आयत नंबर 16, जिसमें आप और मैं देखेंगे उलाइका अल्लज़ीना इश्तरवुद-दलालत बिल-हुदा। ठीक है, ये आयत उम्मीद है आप लोगों को मिल गई होगी, सूरह बकरा आयत नंबर 16। ठीक है, स्टार्ट में ही आयत के अगर आप देखें इश्तरवुद-दलालह ये है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप और मैं देखें तो एक्चुअल में यहाँ पर वऊ जो था वो साकिन वाला वऊ था। ठीक है, यहाँ पर लिखकर नहीं है क्योंकि साकिन वाला वाउ देकर अगर आप लोगों को पढ़ना होता तो आप अपने से यानी दम्मा या फतहा या कसरा लगाकर पढ़ना मुश्किल हो जाता। तो ये ऑलरेडी इसी तरह से लिखकर आसान कर दिया गया आपके और मेरे पढ़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें इश्तरवुद-दलालत, इसको वाउ जो है ये वाउ साकिन वाला वाउ है। यहाँ पर ये वाउ आप देखेंगे ये आकर हुर्फे मद्दा नहीं है। ठीक है, सिर्फ वाउ मुतहर्रिक वाउ है जिस पर दम्मा है, लेकिन असल में अगर देखें तो ये वाउ पर साकिन होना चाहिए था। यहाँ पर दम्मा क्यों दिया गया, क्योंकि अगर वाउ पे साकिन होता दौत को पढ़ते तो दौत को पढ़ते वक्त आपको शद्दा है तो यहाँ पर भी दौत साकिन आएगा। तो वऊ साकिन और दौत साकिन का जमा होना इल्तिकाए साकिनैन हो जाएगा जिसकी वजह से आपको और मुझे पढ़ने में मुश्किल होगी। तो यहाँ पर क्या किया गया, वऊ को मुतहर्रिक कर दिया गया, दम्मा दे दिया गया ताकि पढ़ने में आसानी हो जाए। ठीक है, आसानी हो जाए। यहाँ पर देखिए कुछ भी आवाज कट रही है वो इस वजह से कि बाज दफा यानी मैसेजेस आ जाते हैं व्हाट्सएप पे तो आवाज यानी बीच में रुक जाती है। उम्मीद है आप बस मुझे बताएं कि अब आवाज आवाज ठीक है मेरी, इसीलिए मैं रिपीट कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को मिस ना हो।
जी अल्हम्दुलिल्लाह। चले, तो इस तरह का आपको यहाँ पर समझना है। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको और मुझे कन्फ्यूज़ होना है, बस ये बाज़ रूल्स हैं जो आपको और मुझे मालूम होने चाहिए कि कुरान में ये ऐसे क्यों किया गया, ताकि हमारे पढ़ने में आसानी हो जाए, ठीक है? तो इस तरह का। और फिर अगर आप देखें, एक और मैं आपको बताऊं, सूरे बकरा उठाकर आप देखें, वहां पर जी इसका चलें, ये मैं आपको बता दी, एक एक जो मैं आपको बताई, इश्तराउद्दौलाला, ठीक है। नेक्स्ट जो अगर आप देखें, तो यहाँ पर अब तहरीक में 3 लेटर्स जो आते हैं लास्ट में, कुम, हुम, तुम, कुम, हुम, तुम। तो जब भी यानी कोई कुरान का वर्ड इन 3 यानी इन 3 वर्ड से एंड होगा, कुम, हुम और तुम से, तो वहां पर जो ये मीम साकिन होगा, इसको क्या किया जाएगा, मुतहर्रिक कर दिया जाएगा, ताकि इसके बाद वाले साकिन लेटर को आप आसानी से पढ़ सकें। ओके, ये भी हम कुरान में एग्जाम्पल्स के जरिए से समझेंगे इंशाल्लाह। तो आप उठाएं सूरह बकरा की आयत नंबर 137, 130 पर 7। हंड्रेड एंड 37 उठा लिए आप लोग? एक दो लोग मुझे हैंड रेज कर दें प्लीज, ताकि मुझे इत्मीनान हो और मुझे लगे कि मैं फास्ट नहीं जा रही हूँ। सूरह बकरा आयत नंबर 137, ठीक है। तो इसमें अगर आप और मैं देखें, तो यहाँ पर क्या है, फसयकफीकहुमुल्लाह, ठीक है, फसयकफीकहुमुल्लाह, ये वर्ड आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे, मैं जैसे आपको बताई, कुम, हुम और तुम, यहाँ पे फसयक फी कहूम, ये आपको मीमे साकिन से एंड हो रहा है। ओके, लेकिन आपको यहाँ पर वो दम्मा डालकर बता रहे हैं, तो कंफ्यूज ना हो। आपको ये याद रखना है, जब भी आप ऐसे वर्ड्स कुरान में पढ़ेंगे जहां पर आपको एंडिंग में, वर्ड के एंडिंग में हुम, कुम या तुम आएगा, तो आपको समझना पड़ेगा कि वहां पर इल्तिकाए साकिनैन हो रहा है, जिसकी वजह से जो मीमे साकिन है, अब यहाँ पर आप देखें लफ्जे जलाला, जो लफ्जे जलाला में जो लाम है, लाम यानी मुतहर्रिक है और लाम पर शद्दा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर लाम साकिन प्लस लाम मुतहर्रिक दो है, मर्ज होकर शद्दा के तौर पर। तो मीम साकिन को क्या कर दिया गया, दम्मा दे दिया गया, ताकि लाम साकिन को मिलाकर पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। फसयकफीकहुमुल्लाह, आपको यानी अब आप सोचेंगे कि हम कैसे समझेंगे यहाँ पर इल्तिकाए साकिनैन हो रहा है। तो आपको कैसे समझना है कि जब भी आपको कुरान में ऐसे अल्फाज मिलेंगे, ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिनकी एंडिंग आपको कुम, तुम या हम से हो रही है, तो आपको वहां पे समझना है कि ये इल्तिकाए साकिनैन के वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, जहां पर यानी अल्हम्दुलिल्लाह इसको हरकत दी गई पढ़ने के लिए, ठीक है। हज़फ में आप क्या पढ़े थे, वोवे मद्दा को, वोवे मद्दा, याए मद्दा या अलीफे मद्दा को हज़फ कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हज़फ नहीं किया जाएगा, बल्कि ये साकिन वाले लेटर को हरकत दे दी जाएगी, वो वैसे ही रहेगा, लेकिन पढ़ने में आसानी के लिए हरकत दे दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें, यानी इसके ये एग्जाम्पल का मुझे यानी जल्दी में मुझे ये नहीं मिला, क्या बोलते हैं इसको, कौन सी आयत में था सूरे के, बस मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं।
कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। यहाँ पे अगर आप देखें, ये भी यानी फर्ज कर दिया गया अलैकुम आप पर सियाम रोजे, तो ये भी सूरह बकरा की एक आयत ही है। तो इस पर अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कुम आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। फसयकफीकहुमुल्लाहु में हुम आया था, यहाँ पे अगर आप देखें अलैकुमुस्सियाम तो कुम आ रहा है। तो कुम आने की वजह से यहाँ पर क्या किया गया, मीम साकिन को दम्मा दे दिया गया, ताकि सौत को पढ़ने में, सौत के साकिन को पढ़ने में आसानी हो जाए, ठीक है। ये हुआ आपका दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा अगर आप और मैं देखें, अगर आप मुसहफ में खोलना चाहें तो खोलें, या फिर बस ऐसे ही समझना चाहें तो भी ठीक है। सूरह फातिर की आयत नंबर 15 में अगर आप और मैं देखेंगे, अंतुमुल फकरा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तुम आ रहा है, तुम, तुम, तुम पे आपको मीम साकिन पर यानी हरकत होगी, सॉरी साकिन होगा, और अल अल फकराउ, तो यहाँ पे लाम पर साकिन आ रहा है, तो दो साकिनों को मिलाकर पढ़ना मुश्किल है। इल्तिकाए साकिनैन हो रहा है, यानी दो साकिन की मुलाकात हो रही है। तो पढ़ने में आसानी करने के लिए क्या किया गया, यहाँ पे मीम साकिन को दम्मा दे दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह, समझ में आ गया। जब भी आप कुरान में ऐसे अल्फाज देखेंगे जिनकी एंडिंग यानी फर्स्ट वर्ड की एंडिंग कुम, हुम या तुम से हो रही है, तो आप वहां पर समझ जाएंगे कि ये इल्तिकाए साकिनैन हो रहा है, और इसको अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर शबीना, तो हो रहा है, और वहां पर आपको साकिन वाले हर्फ को मुतहर्रिक कर दिया गया पढ़ने में आसानी होने की वजह से, ठीक है। तो ये हुआ आपको अत्तहरीक की फर्स्ट रूलिंग, अत्तहरीक की फर्स्ट रूलिंग। सेकेंड इंशाल्लाह हम देखेंगे। जी, नेक्स्ट जो आप और मैं पढ़ के हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये नूने साकिन तसउत वक्फन, ठीक है। यानी नूने साकिन तस्कुत काट दिया गया वक्फन की वजह से, स्टॉप करने की वजह से, ठीक है। ये अरबिक टर्म है, तो जिसको आप और मैं नूने कुतनी कहते हैं, आप और मैं नूने कुतनी कहते हैं। अगर आप इंडियन और पाकिस्तानी मुसहफ में देखेंगे तो आपको ये नूने कुतनी नीचे लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन अगर आप उस्मानी मुसहफ में देखें तो आपको ये नूने कुतनी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। वहां आपको रूल के हिसाब से समझकर नून को ऐड करना, नूने कुतनी को लगाना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। अब आप समझ सकते हैं कि तजवीद के रूल्स को हमें जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि मुसहफ के एतबार से भी अगर आप और मैं देखें तो इंडियन और पाकिस्तानी मुसहफ में ये आसानी कर दी गई, नूने कुतनी लिख दिया गया नीचे, ताकि आप और मुझे पढ़ने यानी पढ़ने में आसानी हो जाए, आपको और मुझे। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं शबीना, ठीक है। लेकिन बाज दफा ऐसे होता है उस्मानी मुसहफ में आपको नूने कुतनी नहीं मिलेगा, तो हम कैसे समझेंगे? अगर आप, सॉरी, आप अगर इल्तिकाए साकिनैन वाला रूल नहीं जानेंगे तो जो भी पढ़ने की कोशिश करेंगे यहाँ पर उनको समझ में नहीं आएगा कि कैसे पढ़ना है। और बास को अगर पढ़ने समझ में भी आ गया होगा, सॉरी, ये नहीं पता होगा कि यहाँ पर नूने खुतनी आने की वजह क्या है, ठीक है। एक तो आपको जब नूने खुतनी दिखाई देगा इंडियन और पाकिस्तानी मुसहफ में, तो आपको बास को पढ़ने नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन बास को अगर पढ़ने आ गया तो उनको ये नहीं समझ में आएगा कि यहाँ पर नूने खुतनी क्यों दिया गया, एक वो वजह। दूसरी वजह ये है कि उस्मानी मुसहफ में आपको यानी नूने खुतनी माने छोटा सा नून, जैसे अब मैं नहीं बोल सकती अब खतना किसको कहते हैं,
यानी कुछ छोटी सी चीज, यानी काट कर छान कर, या कुछ खुतनी छोटा जो करना, इसको इंशाल्लाह मैं डिक्शनरी मीनिंग उसको देखकर आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर जो अब उस्मानी मुसहफ में है, अब समझे, अब आप और मैं उस्मानी मुसहफ पढ़ने लगे, या हम यानी उम्रे के लिए गए या किसी के घर पे गए जहां पर उस्मानी मुसहफ है, अब आपको इल्तिकाए साकिनैन मालूम ही नहीं है, तो वहां पर आप कैसे नूने खुतनी लगाकर अपने से पढ़ेंगे? तो क्या करेंगे, आप गलती पढ़ेंगे और गलत पढ़ने की वजह से लहने जली भी हो जाएगा, गुनाह में भी जाएंगे और माना भी बदल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको समझेंगे। तो जब भी यानी तनवीन और नूने साकिन जब आता है, जैसे आप अगर एग्जाम्पल आप एक एग्जाम्पल उठा लें, ठीक है, मैं आपको बताऊंगी सूरह हूद। अब मैं आपको वही एग्जाम्पल्स बहुत जगह कुरान पे आता है, लेकिन मैं पर्टिकुलरली यही आपको बोल रही हूँ इस वजह से कि आपको यानी आसानी हो समझने में। ठीक है, तो सूरह हूद की आयत नंबर 42 उठाएं। सूरह हूद की आयत नंबर 42 उठाएं। सूरह हूद आयत नंबर 42। ठीक है, यहां पर आप और मैं अगर देखें अल्हम्दुलिल्लाह, तो आयत के दरमियान में आपको एक वर्ड आ रहा है, वनादा नूहुनिबनहू, नूहुनिबनहू। ठीक है, ये आ रहा है आपको आयत के दरमियान में। यहाँ पर अगर आप देखें तो इंडियन मुसहफ में आपको क्या कर दिया गया, हु एक्चुअली देखें आप, यानी जिसके पास भी घर में उस्मानी मुसहफ भी मौजूद है, आप उठाकर कंपेयर करके देखें इंडियन मुसहफ को और उस्मानी मुसहफ को। तो यहाँ पर एक्चुअली आपको क्या है, हु पर जो दम्मा है या जो पेश है, ये एक्चुअल में आपको तनवीन था, तनवीनुद्दम था। तनवीनुद्दम किसको कहेंगे आप, जब दो पेश हो। ठीक है, यानी दो पेश हो जिसको तनवीन कहा जाता है, दो जबर दो जेर और दो पेश। तो जब तनवीनुद्दम था यहाँ पर, लेकिन क्या किया गया, अब चले मैं इसको आपको और आसानी से समझाऊं। अगर आप नूहुन, नूहुन को पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, हुन, हुन। तो तनवीन की आवाज में आपको क्या हो रहा है, लास्ट में आपको नून साकिन की आवाज आ रही है। ठीक है, आप अगर हिन पढ़ें तो भी नून साकिन की आवाज आएगी, हन पढ़ें तो भी नून साकिन की आवाज आएगी, हुन पढ़ें तो भी नून साकिन की आवाज आएगी। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, ये नून साकिन आ गया। फिर अगर आप इब्नहू में अगर देखें तो बा पे भी साकिन आ गया। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं हमजतुल वसल को, अच्छा ठीक है, मैं फिर आपको रिपीट करती हूँ। मुझे थोड़ा लिखने में मुश्किल होती है यहाँ पे, मैं इसलिए आपको यानी नहीं लिखती, क्योंकि मुझे इसकी यानी आदत नहीं है इतनी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। ये एक्चुअली इस तरह का है। ठीक है, नूहुन, हुन को अगर हम मैं और आप लिखेंगे तो ये क्या होगा, हुन, यानी सॉरी साकिन, मुझे थोड़ा ऐसे सर्कल डालने का जैसा उस्मानी मुसहफ में रहता है इस तरह का। हाँ, व्हाइट बोर्ड ये थोड़ा यानी जूम ऐप मुझे थोड़ा यूज करने में ये इस तरह की चीजें मुश्किल होती है, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर अगर आप देखें, हुन जो है यानी नू हुन का हुन, अगर इसको हुन को आप लिखेंगे तो ये कैसे होगा, आपको हा दोम्मा नून साकिन हुन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, आपको नून पर साकिन आ गया। अब इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो इब्नहू है। ठीक है, इब्नहू है। अब यहाँ पर आप, जैसा कि आप और मैं जानते हैं कि हमजतुल वसल को दरमियान के वर्ड के दरमियान में पढ़ा नहीं जाएगा, क्योंकि उससे पहले अगर कोई हर्फ आ रहा है तो हमजतुल वसल को ड्रॉप कर दिया जाएगा। ठीक है,
تو यहाँ पर क्या हो रहा है, नून साकिन और बा साकिन दोनों आ रहे हैं, ठीक है, नून साकिन और बा साकिन, तो नैन हो गया। तो इल्तिकाए साकिनैन होने की वजह से यहाँ पर पढ़ना मुश्किल है। तो पढ़ने में आसानी होने के लिए सूरह हूद आयत नंबर 42, तो पढ़ने में आसानी होने के लिए क्या कर दिया गया, ये जो हुन, हुन का जो हु करके जो ये नूने साकिन है, इसको नीचे लाकर इसको कसरा या मुतहर्रिक कर दिया गया। समझ में आया? ये जो नून साकिन है, इसको पढ़ने में, मैं आपको बताई, ये तहरीक का रूल है, तहरीक का रूल है। यहाँ पर साकिन वाले लेटर को हजफ नहीं किया गया, ठीक है, बल्कि साकिन वाले लेटर को हरकत दी जा रही है। पहले हम क्या रूल सीखे, कुम, तुम और हुम अगर आए तो, ठीक है, वहां पर हरकत दी जाएगी। अब आप यहाँ पर क्या सीख रहे हैं, अगर तनवीन को स्प्लिट कर कर लिखा जाएगा, तो तनवीन का जो ये नूने साकिन है, यानी हुन का जो नूने साकिन है, इसको क्या किया जाएगा, पढ़ने में आसानी करने के लिए ये साकिन वाले लेटर को नीचे छोटा नून बनाकर उसे कसरा देकर लिख दिया जाएगा, ताकि बा साकिना से मिलाकर पढ़ने में आसानी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। एक और बात मैं आपको बताते चलूं कि नूने खुतनी में अक्सर जेर ही आता है, ठीक है, जेर ही आता है ताकि अगले वाले लेटर में पढ़ने के लिए आसानी हो। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरह से यानी हुन को यानी हा हु कर दिया गया और इसके नून साकिन को नीचे लिखकर इसको कसरा दे दिया गया, ताकि बा साकिना को पढ़ने में आसानी हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर हम इसको कैसे पढ़ेंगे, नूहुनी बनहू, नूहुनी बनहू। अगर आप उस्मानी मुसफ में देखेंगे तो यहाँ पर कैसे रहेगा, ऐसे ही रहेगा, नूहुन इब्नहू रहेगा, हमजतुल वसल पर जेर नहीं रहेगी। तो यहाँ पर आपको और मुझे फौरन समझना है कि यहाँ पर इल्तिकाए साकिनैन हो रहा है, नून पर साकिन आ रहा है, बा पर साकिन आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, उस्मानी मुसफ में पढ़ते वक्त आप खुद ही नूने खुतनी को यानी मिलाकर पढ़ लेंगे, लगाकर वहां पे अंडरस्टैंड करके। ये कब होगा, जब आप इल्तिकाए साकिनैन के इन रूल्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, वरना आप और मैं पढ़ने के 100% यानी पढ़ने में गलती करने के 100% आपके और मेरे चांसेस होंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये जानना, ये सब रूल्स बहुत बहुत जरूरी है। ओके, तो उम्मीद है ये समझ में आ गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर आप और मैं देखेंगे तो आप उठाएं सूरह मरियम की आयत नंबर, जी, सूरह हूद की आयत नंबर 42। बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको और मुझे, चूंकि मैं ये एग्जाम्पल्स आपको यानी नोट्स में लिखकर हूं, इसीलिए मैं आपको समझाने के लिए यही बता रही हूँ, ठीक है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिश करेंगे, यानी आप और मैं एग्जाम्पल्स के और कुरान के एग्जाम्पल्स ढूंढकर इसको रिविजन की तरह समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप उठाएं, देखिए यहाँ पर मैं आपको क्या दिखाई, इल्तिकाए साकिनैन यानी दम्मा में बताई, दम्मतैन, तनवीन दम में बताई, ठीक है। अब हम कसरतैन में देखेंगे, जो कि आप यानी तनवीन कसरा देखेंगे। सूरे मरियम की आयत नंबर 61 उठा लें, सूरे मरियम आयत नंबर 61। सूर्य मरियम आयत नंबर 61, अगर इंडियन मुसफ है तो पेज नंबर 306 है, ठीक है। मेरा जो है मुसफ ज्यादातर तो यही रहता है, तो 306 है। तो सूर्य मरियम की आयत नंबर 61 अगर आप और मैं उठाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, तो यहाँ पर आप देखेंगे जन्नती अदनी निल्लती,
जन्नती अदनी निल्लती। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्चुअल में अगर आप और मैं देखें, उस्मानी मुसहफ में रेफर करें आप लोग जिनके पास उस्मानी मुसहफ मौजूद है, यहाँ पर यानी उस्मानी मुसहफ में अदनिन अल्लती रहेगा। क्या रहेगा? अदनिन अल्लती। अल पे आपको यानी हमजतुल वसल पे कोई जबर जेर नहीं मिलेगा। आपको वहां पे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि यहाँ पे इल्तिकाए साकिनैन हो रहा है, आपको नूने खुतनी लगाकर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मेरे पास अब मैं इंडियन मुसहफ ओपन करके हूं ताकि आपको समझाने में आसानी हो सके, और अगर आपके पास इंडियन मुसहफ है तो समझने में आसानी हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं और आप देखेंगे तो आप देखें, ठीक है, सॉरी, चले। हाँ, यहां पर आपको मिलेगा कि आदनी। ठीक है, आदनी अल्लती लिखकर क्या किया गया है इंडियन मुसहफ में, यहां पर नूने खुतनी नीचे दे दिया गया है। ठीक है, अगर आप यहां पर देखें, निन आप कैसे पढ़ेंगे? नून नून, नून जेरनी, नून साकिन। ठीक है, नून नून साकिन आएगा, निन निन, आग्द निन, आग्द निन। अगर आप स्प्लिट करके तनवीन को लिखेंगे तो यहां पर भी आप देख रहे हैं कि एंडिंग में क्या हो रहा है, नून पर साकिन आ रहा है। तो इसको क्या किया गया इंडियन मुसहफ में या उस्मानी मुसहफ में भी अगर आप पढ़ेंगे तो ये तनवीन का जो नून साकिन है, इसको पढ़ने में लाम साकिन से मिलाकर पढ़ने में आसानी होने के लिए इसको कसरा दे दिया गया। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? अदनी निल्लती, अदनी निल्लती। ठीक है, अगर आप इस तरह से नूने खुतनी अगर नहीं आता और आपको और मुझे ऐसे ही पढ़ना होता तो बहुत मुश्किल होती। कैसे पढ़ते आप और मैं? अदनिन लती, अदनिन कैसे मिलाते हैं? तनवीन को लाम मुशद्दद से मिलाना तो नामुमकिन सी बात हो जाती। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या किया गया, ये जो तनवीन आ रहा है, तनवीन कसरा, तो इसको आप साकिन वाले यानी नून को मुतहर्रिक कर दिया गया। ठीक है, तो ये हो गया आपको एग्जाम्पल। अब थर्ड एग्जाम्पल आपको तनवीन फतहा यानी जो दो जबर का तनवीन है, जो आप सूरे आराफ में देखेंगे आयत नंबर 164 में। आप उठाना चाहें, समझना चाहें उठा लें, या फिर कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं आप लोगों के आसानी के लिए ये दिखा रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कुरान में करके। इंशाल्लाह इसके बाद हम इसी तरह से एग्जाम्पल्स के जरिए से समझेंगे ताकि कोई यानी मुश्किल ना हो। तो यहाँ पर अगर आप देखें आयत नंबर 164 में, आयत नंबर 164 के स्टार्ट ही की आयत में अगर आप देखें, कौमनिल कौमनिल्लाहु, कौमनिल्लाहु, सॉरी निल्लाहु नहीं होगा, कौमनिल्लाहु। ठीक है, निल्लाहु। तो यहाँ पर अगर आप देखें ये कौमा नहीं है, एक्चुअल में ये कौमन है। ठीक है, कौमन है, लेकिन यहाँ पे पढ़ने में आसानी होने के लिए, क्योंकि लामे इसमें जलाला के लाम पर जो शद्दा है इसमें लाम साकिन है। अब तनवीन में भी अगर आप देखें, तन तन होगा जिसमें भी नून साकिन, तो नून साकिन और लाम साकिन की मुलाकात हो रही है, यानी दो साकिन की मुलाकात हो रही है, पढ़ने में मुश्किल होगी। तो क्या किए, ये कौमा बना दिए, उसके नून साकिन को अल्लाह के नीचे लगा दिए और उसको नूने खुतनी यानी जेर करके निल्लाहु, निल्लाहु कर दिया गया। समझ में आ गया? तो इस तरह से अतहरीक कर दिया गया। ओके, यानी
नून को हज़फ नहीं किया गया, बल्कि इसको पढ़ने में आसानी करने के लिए ये नून साकिन को हरकत दे दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अत्तहरीक का सेकेंड रूल मैं आपको सिखा दी। पहला क्या सिखाई? कुम, हुम और तुम आने की वजह से वहां पर आप उसको मुतहर्रिक करेंगे मीम साकिन को। सेकेंड हम लोग क्या सीखे? जब भी तनवीन आएगा तो तनवीन को यानी मिलाकर पढ़ने के लिए इल्तिकाई साकिनैन में उसको यानी एक हरकत वाला करके उसके जो नून को नून साकिन है वो नून साकिन को हरकत दे दी जाएगी पढ़ने में आसानी होने के वास्ते। ठीक है। थर्ड जो है तहरीक का जो थर्ड है रूल वो ये है, यानी ग्रामर, पता नहीं मुझे आप में से चंद लोग ग्रामर यानी पढ़ रहे हैं, यानी मुझे इल्म है इस बात का और बाकी नहीं पढ़ रहे होंगे। तो ग्रामर में एक जो है मिन करके, यानी ग्रामर में अरबिक ग्रामर जो है उसमें सबसे पहले तो आपको कलिमा आएगा। कलिमा यानी वर्ड। वर्ड में आपके 3 इकसाम आएंगे, इस्म, फेल और हर्फ। ठीक है। इस्म, फेल और हर्फ। इस्म माने नाउन, फेल माने वर्ब, हर्फ माने पार्टिकल। तो ये पार्टिकल्स जो होते हैं एक्चुअली अगर अरबिक में देखें आप और मैं तो ये 17 पार्टिकल्स हैं। ठीक है। हर्फ जो है ये 17 पार्टिकल्स हैं। हर्फ की अपनी कुछ यानी शनाख्त नहीं होती, उसका कुछ माना नहीं होता। अब हर्फ आप पार्टिकल किसको कहेंगे? इज, फ्रॉम, इन, ऑन, ओके, इस तरह के वर्ड्स जो कि इंग्लिश में आप और मैं पढ़ते हैं। अब मैं आपको ऑन कहूंगी तो आप क्या समझेंगे? कुछ भी नहीं समझेंगे जब तक इसमें आप वर्ब और या नाउन नहीं मिलाएंगे। ठीक है। वर्ब और उसका एक अलग खुलासा है, मैं उसके डिटेल में अभी नहीं जाऊंगी आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। बस इतना याद रखें कि अरबिक ग्रामर में हर्फ, पार्टिकल, हाँ हर्फ जर, तो पार्टिकल जो होते हैं वो 17 होते हैं, लेकिन वो 17 में भी कुरान में सिर्फ 11 का जिक्र आता है। ठीक है। कुरान में सिर्फ 11 का जिक्र आता है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से एक जो है वो मिन है। ठीक है। एक जो है वो मिन है, इसको मिन जारा कहेंगे। यानी जार, जार जिसको कहते हैं या हुर्फे जर जिसको कहते हैं उसको प्रेपोजिशन कहते हैं। ठीक है। या पार्टिकल कहते हैं। तो मिन, जब भी कुरान में आप ऐसे हुरूफ देखेंगे, ऐसे वर्ड्स देखेंगे जहां पर आपको मिन आ रहा है, ठीक है, जहां पर आपको मिन आ रहा है, तो वहां पर आप क्या करेंगे? उस नूने साकिन को आप यानी हरकत देकर पढ़ेंगे। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सूरे मारिज की आयत नंबर 3। सूरे मारिज की आयत नंबर 3 उठा लें, मैं आपको समझाऊंगी। यानी जब भी प्रेपोजिशन आए तो वहां पर आप यानी देखेंगे कि इसको इल्तिकाई साकिनैन होने की वजह से यहाँ पर हरकत दे दी जाएगी पहले वाले साकिन को। हाँ 570 है, 570 मुसफ में। चलें इसको हम देखेंगे एग्जाम्पल के जरिए से। तो सूरे मारिज की आयत नंबर अगर आप 3 में देखेंगे तो यहाँ पर आप स्टार्ट में ही देखेंगे मिनल्लाह, मिनल्लाह। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें मिनल्लाह जो है वो है आपको हुर्फे जारा। ठीक है। तो हुर्फे जारा को आप यानी नूने साकिन को लाम साकिन से मिलाकर नहीं पढ़ सकते। इस वजह से यहाँ पर क्या किया गया? नून को मुतहर्रिक कर दिया गया, फतहा दे दिया गया, जिसकी वजह से वहां पर पढ़ने में आसानी हो गई। मीन अल्लाह। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह से आप और मैं समझे 3 तरह के तहरीक के रूल्स। ओके। लास्ट एक बाकी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और इसका रिवीजन एग्जाम्पल्स के जरिए से आप और मैं समझेंगे। ठीक है। तो तब तक आप एग्जाम्पल्स ढूंढें और मुझे भी बताएंगे अगली क्लास में। क्लास वाइंड अप करते हैं, वक्त बहुत हो गया है। अगर आप लोगों को कोई डाउट्स हैं तो पर्सनली मुझे प्लीज मेरे नंबर पर मैसेज कर दें या वॉइस नोट भेज दें, मैं आपको सिखा दूंगी। ठीक है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।